Hello everyone, my name is Dr. Meenu Anand, Assistant Professor in Economics, Government College for Women, Bastada. Today, I will discuss about the topic price elasticity of demand and its degrees. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है. Law of demand states that other things being equal, demand for a good increases with a fall in price and vice versa. That means price increases, demand decreases, and when the price decreases, demand increases. मांग का नियम हमें ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर एक गुड की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, एक गुड की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है. दैट मीन्स देयर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. बट इट डजेंट टेल अबाउट हाउ मच चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग दिस मच चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन मांग का नियम हमें ये नहीं बताता कि प्राइस में चेंज होने से कितना मांग में परिवर्तन आएगा. Law of demand shows the direction and it is a qualitative concept. In order to know how much change in price will bring about how much change in quantity demanded, this we can know with the help of the concept of elasticity of demand. Now, what do you mean by elasticity of demand? Elasticity of demand, it is a measure of responsiveness of demand to the price of commodity, income of the consumer, and price of related goods. Elasticity of demand हमें क्या बताता है? Elasticity of demand मांग के रिस्पॉन्सिवनेस को बताता है. मांग कितनी सेंसिटिव है जब खुद के प्राइस में चेंज हो रहा है, कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा है और रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है. दैट मीन्स इट शोज़ हाउ मच डिमांड चेंजेस विद चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नाउ elasticity of demand is a ratio. It is a percentage change and it is a quantitative concept. Definition of elasticity of demand. According to Dole, the elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in its price of other goods and change in consumers income. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की रिस्पॉन्सिवनेस है जब खुद के गुड के प्राइस में चेंज होता है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होता है और कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है. There are three types of elasticity of demand. Number 1, price elasticity of demand. Number 2, income elasticity of demand. Number 3, gross elasticity of demand. Now we will discuss about the price elasticity of demand. मांग की कीमत लोच. It is the measure of the responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price, other things being equal. अन्य बातें समान रहती हैं तो कीमत में परिवर्तन होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परिवर्तन होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें पता चलता है. डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अकॉर्डिंग टू मार्शल, elasticity of demand may be defined as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in the price.
This we can see with the help of a formula. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। देर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नंबर 2, परफेक्टली inelastic demand. Number 3, unitary elastic demand. Number 4, more than unitary elastic demand. Number 5, less than unitary elastic demand. Number 1, perfectly elastic demand. When demand is infinite at the prevailing price. जब prevailing price पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनाइट हो जाती है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स टू जीरो विद एन इंक्रीज इन प्राइस और लीड्स टू इन्फिनाइट इंक्रीज इन डिमांड विद ए फॉल इन प्राइस। इस सिचुएशन में अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड विल फॉल टू ज़ीरो। इट मीन्स नो वन विल बाय द प्रोडक्ट। और थोड़ा सा प्राइस फॉल होने से ऑल विल बाय। इट विल लीड टू इन्फिनाइट इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट, perfectly inelastic demand. It is one in which a change in price causes no change in quantity demanded. That means price में change हो रहा है, quantity demanded में कोई भी change नहीं हो रहा है। इस केस में elasticity of demand ज़ीरो होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो कि प्राइस पहले 5 था, फिर प्राइस बढ़कर 10 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा। इस केस में प्राइस के कम होने से और प्राइस के बढ़ने पर मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो हो जाती है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. It is one in which percentage change in price is equal to percentage change in demand. इस केस में जितना प्राइस में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होगी और डिमांड कर्व की शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। अब मान लीजिए कि 5% ही प्राइस में परिवर्तन हुआ है और 5% ही क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन हुआ है। 5% प्राइस में कमी होने के कारण 5% ही मांग बढ़ जाएगी, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होगी। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. In this case, percentage change in demand is more than percentage change in price. इसका मतलब यह है कि जब प्राइस में चेंज होगा डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक होगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि प्राइस में 5% की कमी हुई है, लेकिन मांग में 20% मांग हमारी 20% बढ़ गई है, तो इस केस में मांग में ज़्यादा परिवर्तन होगा कीमत से। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड.
It is a situation in which percentage change in demand is less than percentage change in price. इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइस कम होता है तो मांग में कीमत से कम परिवर्तन होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कीमत में 4% की कमी हुई है, लेकिन मांग में सिर्फ 2% की ही वृद्धि हुई है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।